Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching for Regulatory Bodies. And in this session, I am going to discuss about one important fact जिसे बहुत बार हम लोग neglect करते हैं, बहुत बार हम लोग इसको नजरअंदाज करते हैं. And the fact is that to clear the RBI Grade B, you should have command on certain topics, and those topics are really very important if you really want to clear the RBI Grade B. Now, while preparing the RBI Grade B, many of the times we think about phase two, and yes, of course, we should think about the phase two because phase two an interview is going to give you the post. But while doing that, many students are neglecting the phase one part, and they are not able to clear phase one when it comes to the actual exam. And this happens a lot every year. Many serious students, like this time, near about a 30 to 40% serious students, they were not able to clear the phase one. जबकि फेज टू का प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया तरीके से सारे सब्जेक्ट, फिनेंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, सोशल इशू, एवरीथिंग वाज रेडी. द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वाज अप टू द डेट, so everything was wonderful, but they were not able to clear the RBI Grade B phase 1. Even the sectional cutoff of few subjects, for example QA, reasoning, they are not able to clear even the sectional cutoff of those subjects or those papers. That's why we need to focus and we need to introspect a little bit, and that introspection gives us one idea that the preparation of bank exams like SBI PO or the IBPS PO can be very helpful to clear these RBI Grade B phase 1. So those who are focusing on RBI Grade B phase 1, I normally do suggest them. So QA, reasoning, and English is anyhow very easy. So, but for especially for QA and reasoning, do follow the SBI PO and the IBPS PO syllabus, or go through some topics. Okay. If possible, give the exams also. Go for the IBPS PO exam, go for the SBI PO exam. You are going to get a very good idea exactly how the paper there, the paper is coming, how you are going to handle that pressure during the paper. What students are doing, basically, there is a very shortcut way students are nowadays approaching, and that's why they are not able to clear the exam. And इनको ये seriousness समझ में भी नहीं आती है. कई बार उनको लगता है कि कुछ नहीं, मेन टॉपिक करके जाएंगे, इतने में से इतना लेके आगे, कट ऑफ निकल गया, हो गया. ऐसा नहीं होता है. दिस नॉट गोइंग टू हैपन. जिसका क्यूए अच्छा है वो इस स्ट्रेटेजी के साथ जा सकता है, क्योंकि उसका क्यूए ऑलरेडी अच्छा है. जो दोज हु आर नॉट गुड विद द क्यूए एंड द रीजनिंग, they need to work really very hard. They need to think really very hard about their approach, their study. If their approach is not good, it is not definitely going to help them. And that's why एक थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना बहुत जरूरी है. तो कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बात करते हैं, और क्या अप्रोच होना चाहिए, कौन से टॉपिक्स और कुछ चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, और किस तरीके से ये एग्जाम फेज 1 पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर ले, ताकि फेज 2 का जो आपका प्रिपरेशन है वो बर्बाद ना हो. इसकी तरफ हम लोग ध्यान देंगे. बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन, दोज हु आर एट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन भी दबा के रखिएगा ताकि आने वाले सेशंस की जानकारी आपको मिल जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सबसे पहले कट ऑफ को लेके, बिकॉज लास्ट 2-3 इयर्स के कट ऑफ एक बार डिस्कस करते हैं. फेज 1 के कट ऑफ की बात करेंगे. सो व्हेन इट कम्स टू फेज 1, 2024 के कट ऑफ यहाँ पे आपके सामने. सेक्शनल कट ऑफ की तरफ मैं डायरेक्टली जाऊंगा. सेक्शनल कट ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ विल सी द सेक्शनल कट ऑफ, जनरल अवेयरनेस 20 के, अगेन जनरल कैटेगरी के या अनरिजर्व कैटेगरी के सेक्शनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं. जनरल अवेयरनेस 20, इंग्लिश 7.50, क्यूए 7.50, रीजनिंग 15, and the total was 67.25. So if you'll see the English 7.50, quantitative aptitude 7.50, reasoning 50 out of 60, and GA 20 out of 80. GA is not that much troublesome, because if you read the current affairs properly, and if for the whole year if you are reading current affairs properly and revising 6 months, look, revision of 6 months is important, but you need to read current affairs on the daily basis, then only it is going to help you, not only for the phase 1 but also phase 2. So that shortcut approach कि सिर्फ 6 महीना 3 महीना पढ़ के जाएंगे और एग्जाम निकाल लेंगे, this approach is definitely not going to help you. This is the worst approach. Okay, but what to do? People are having a kind of a different mindset, a shortcut mindset. उनको लगता है कि ये कॉलेज की एग्जाम है, इतना पढ़ के एग्जाम निकल जाएगी. ऐसा नहीं होता है. You need to focus a lot. But anyways, my focus will be on the this QA and reasoning. 7.50 and 15 were the cutoffs, and students were not able to get even 7 marks, not even 6 marks. Okay, so they lose the hope that time only, because the paper was a bit difficult. Even with the reasoning, there are some puzzles, there were some questions were very difficult. They were not even able to understand the questions. Because why this happened? Because of lack of practice and overconfidence.
और कॉन्फिडेंस लाइक बस ये 2-4 टॉपिक करके जाते हैं, इसके भरोसे एग्जाम निकाल देते हैं। एंड मेनी पीपल आर ओनली गाइडिंग दैट थिंग ओनली कि जस्ट follow these 2-3 topics and exam you are able to clear the exam. We are forgetting one thing. Every year paper is bit different, every year paper is bit difficult. For Q and reasoning, if you want to really excel the Q and reasoning, you should start from the basic से start करना बहुत जरूरी है। सिर्फ 2-4 टॉपिक पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ DI कर लो, पर DI में सारे बेसिक्स आते हैं। अगर आपका QA का बेसिक ही नहीं है तो जो क्वेश्चंस वो लोग पूछेंगे वो समझ में नहीं आएगा और आप आंसर तक नहीं पहुंचोगे। जो कुछ प्रैक्टिस आप करते हो उसके आंसर्स ना ऑलरेडी दिए होते हैं, अगर आंसर नहीं भी आया तो वो आंसर देख के या वो प्रोसेस देख के आप उसको फॉलो कर लेते हो। But what about exam? Exam में in that exam pressure, in that exam scenario, they are going to give you some googlies, they are going to give you some such kind of questions जिसको read करके आपको उसी टाइम पे उसे solve करना है। जिसका पहले से QA अच्छा है वो नॉर्मली ऐसा गाइड करता है कि आप बस ये 2-4 टॉपिक कर लो, कट ऑफ तो निकालना है वो तो आप निकाल ही लोगे। उसका बेसिक QA अच्छा है, शायद आपका नहीं है। आप उसके साथ खुद को कंपेयर मत कीजिए। देयर आर सम स्टूडेंट्स फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दे आर एबल टू क्लियर द आरबीआई ग्रेड बी इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, दे आर इजीली क्लियरिंग द फेज 1। द रीजन इज दैट देयर QA is very strong from the basic only, so they love QA, so they can solve any kind of question whenever they want, and for them speed doesn't matter because they don't only want to clear the cutoff, that's it। okay, so speed का टेंशन नहीं है, उनका ऑलरेडी उसमें बहुत इंटरेस्ट है, so वो इंटरेस्ट के भरोसे आंसर सॉल्व कर लेते हैं। Those they don't have the QA background, जिनको QA में इंटरेस्ट नहीं है, जिनको बड़ी दिक्कत जा रही है, उनको शॉर्टकट यूज नहीं करना चाहिए, या उनको एटलीस्ट इन लोगों से तो फीडबैक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हर किसी का अपना सब्जेक्ट ना फेवरेट होता है, उस फेवरेट सब्जेक्ट में उसको मेहनत करनी नहीं पड़ती, वो आराम से एग्जाम क्लियर कर लेता है। बट जिसका वो सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है, उसे ऐसे स्टूडेंट से या ऐसे ऑफिसर से फीडबैक कभी नहीं लेना चाहिए। माना कि उसने एग्जाम क्लियर की होगी पर उसका अप्रोच अलग था, उसका फोकस अलग था, उसका स्टडी पैटर्न अलग था। आप अलग हो, आपका अप्रोच अलग है, आपका स्टडी पैटर्न अलग है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर हम 2023 की कट ऑफ की बात करते हैं तो 2023 में QS cutoff was only 4.50, was very difficult paper. Same for the English, reasoning was only 9, even the general awareness was only 12. Paper was really very difficult, and this thing happens. If we talk about 2022, again the QA was 4.5, so almost similar cutoff was there in 2022. Before that, the QS cutoff was 2.50, so cutoffs were very different and different year. So if you think कि last time 4.5 था, 2.5 था, बस इतने मार्क्स मिल जाए तो मेरे लिए हो जाएगा, cutoffs are changing also. So you need to be very strong with your understanding. At least your basic understanding should be good. Out of 30, at least minimum 10 plus marks should be with you. I will say 15 plus marks should be with you. इतना कॉन्फिडेंस हमारे पास होना चाहिए कि QA में 30 में से 15 प्लस मार्क्स तो मिलने ही चाहिए। तो कोई डर नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि हम 10 से कम सॉल्व करके आते हैं, उसमें भी कुछ गलत हो गया तो निगेटिव मार्किंग बढ़ जाएगी, तो कट ऑफ क्लियर होगा नहीं होगा वो डर सा दिमाग में होता है, और ना फेज 2 की सही से पढ़ाई हो पाती है। इसीलिए जब भी आप QA और रीजनिंग का एग्जाम देने जाते हो तो दिमाग में एटलीस्ट इतना ध्यान रखिएगा कि QA में 15 के आसपास तो क्वेश्चन सॉल्व होने ही चाहिए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रुकावट के। सेम फॉर द इंग्लिश एंड सेम फॉर द रीजनिंग के। सो अगर आपने इतना भी कर ले तो कट ऑफ का टेंशन दिमाग में नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स स्कोर ज्यादा आया तो अच्छी बात है, बिकॉज ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए काफी हेल्प मिलेगी। सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ की बात नहीं, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है तो एक्स्ट्रा मार्क्स भी ऐड हो जाएंगे, और साथ में वो टेंशन नहीं रहेगा, आप फेज 2 पे प्रॉपर्ली फोकस कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द आरबीआई ग्रेड बी, आई विल सजेस्ट देम कि बैंकिंग एग्जाम की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी आपके पास वक्त है, अभी SBI क्लर्क, SBI PO का एग्जाम आने वाला है। गिव दोज एग्जाम्स, उन एग्जाम्स को दीजिए। जिन जिन एग्जाम्स में QA रीजनिंग इंग्लिश का पेपर पैटर्न है, गो एंड गिव दोज एग्जाम, बिकॉज एग्जाम में बैठने के बाद एक्चुअली समझ में आता है कि हम कहां स्टैंड करते हैं। प्री दीजिए, प्री में आपको समझ में आएगा आप कहां स्टैंड करते हो। अगर प्री क्लियर हो रही तो मेंस देना अच्छी बात रहेगी, क्योंकि मेंस में हमें एक्चुअल जो हमारा पेपर पैटर्न है वो भी हमें एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। पर अगर आपका प्री ही नहीं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं बेसिक्स में गड़बड़ है, तो आपको बेसिक्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये करनी जरूर, ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट दे वर नॉट एबल टू क्लियर द प्री, then they realized they what mistake they are doing and they started focusing on QA reasoning like a normal banking student, and they used to give the exams also. Obviously phase 2 का आपका प्रिपरेशन चल रहा है, phase 2 की तरफ आप ध्यान दे रहे हो, नो डाउट वो तो करना ही पड़ेगा। पर अगर phase 1 ही क्लियर नहीं हुई तो क्या ही मतलब बनता है phase 2 के स्टडी का। पूरा साल बर्बाद होगा, पूरा ईयर बर्बाद होगा।
दैट्स व्हाई बी प्रैक्टिकल एंड फोकस ऑन द एग्जाम। यहां इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, इसकी क्या बातें हुई, उसकी क्या बातें हुई, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है, आरबीआई ने सिलेबस दिया हुआ है, आरबीआई के प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपके पास है, आपके पास दिमाग है, यू आर ग्रेजुएट, यू आर पोस्ट ग्रेजुएट, जस्ट यूज योर ब्रेन एंड एनालाइज द सिचुएशन। कौन क्या कह रहा है, किसकी बातें क्या चल रही, कौन बढ़िया बढ़िया बातें करता है, इससे एग्जाम नहीं निकलती है। एग्जाम निकलती है सच्चाई के भरोसे। सो इसलिए प्लीज एनालाइज कीजिए सारे पैटर्न को, और फेज वन को नेग्लेक्ट मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस साल यही गड़बड़ की, यही सोच के गए कि हाँ 4-5 मार्क तो कमा ही लेंगे क्यूए में, 4-5 मार्क तो कमा ही लेंगे रीजनिंग में, इतना तो मुझे आता ही है। दिस इज शेयर ओवर कॉन्फिडेंस, और वो फिर ना एक एक आपको सेटबैक देगा। सेटबैक देने के बाद भी अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे कि उनकी गलती कहाँ हुई है। दे आर गिविंग लाइक दे आर सेइंग कि नोट्स गलत थे, हमारी मॉक टेस्ट गलत थी, हमें मॉक टेस्ट चेंज करनी पड़ेगी, हमें नोट्स चेंज करने पड़ेंगे। नोट्स और मॉक टेस्ट की गलतियां नहीं होती है, वो अपने जगह पे सही होते हैं। आपको अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। किसी मॉक टेस्ट या किसी नोट्स के क्वेश्चंस एज इट इज एग्जाम में कभी नहीं आते। आज तक नहीं हुआ कि यार ये नोट्स पढ़ के गया, एज इट इज सवाल आ गए, नहीं होगा। जीए में होता है, क्योंकि जीए में करंट अफेयर्स की न्यूज सब जगह सेम होती है, कोई करंट अफेयर्स पैदा नहीं करता। अब जो न्यूज है वो न्यूज तो हर नोट्स में रहेगी, तो कोई भी नोट्स अच्छे से पढ़ो, जीए में आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगा। बट व्हेन इट कम्स टू क्यूए रीजनिंग इंग्लिश, यू नीड टू वर्क ऑन योर बेसिक्स। अगर बेसिक्स सही है तो कोई भी मॉक टेस्ट, कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट या कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट आप सॉल्व कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी एग्जाम सही से निकलेगी। Why I am repeatedly telling you go and give the banking exam, क्योंकि एग्जाम में बैठने के बाद सीरियसनेस समझ में आती है, उस एनवायरमेंट में हमें रियलाइज होता है कि यार हाँ क्यूए में कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, उतने टाइम फ्रेम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। घर पे बैठ के ना हम अपने एनवायरमेंट में होते हैं, अपनी मस्ती में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपने आप को पैम्पर करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जो रिजल्ट नहीं देता है। इफ यू आर सीरियस इनफ to push yourself at your home environment, then okay. But if you are lethargic and if you are pampering yourself कि बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, then definitely not going to help you. You need to focus on the bank exam at the same time, QA रीजनिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। Now कुछ सिलेबस का पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, ये तो हमारा ओवरऑल फेज वन का एग्जाम पैटर्न है। तो थोड़े कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रीजनिंग की बात करेंगे तो यूजुअली ये 16 टॉपिक्स है जो रीजनिंग के अंदर हम लोग फोकस करते हैं। इन 16 टॉपिक्स के ऊपर हमारा मेजरली फोकस होता है जब रीजनिंग की बात आएगी। अब इस 16 टॉपिक्स में से मैं तो कहूंगा कि आप सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से फोकस कीजिएगा। बट यहाँ पे ना अगर पिछले 4-5 साल की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इनके नाम आते हैं। ये 9 टॉपिक्स आपको है जो रीजनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट दिखाई देंगे। पर अगेन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जीरो से अगर स्टार्ट करते हो, बेसिक से स्टार्ट करते हो, तो फिर आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग बनेगी। और अभी टाइम है, अभी वक्त है, तो प्लीज उसकी तरफ ध्यान दीजिए। एटलीस्ट वीक में 1 दिन 2 दिन रीजनिंग को, 2 दिन क्यूए को आप दीजिए, वो हेल्पफुल रहेगा। माना कि बाकी भी स्टडी करनी है, पर वही तो काम है हमारा। जितना स्ट्रांग स्टडी करेंगे, जितना एक साल पूरे जोश के साथ स्टडी करेंगे, सबको मैनेज करते हुए, तो एग्जाम आराम से निकलेगी। सिर्फ फेस टू मत कीजिए, क्योंकि लास्ट में फिर बड़ी प्रॉब्लम जाती है, बड़ी दिक्कत जाती है। हर साल हम स्टूडेंट्स को देखते हैं, जितने स्टूडेंट्स देते हैं उसमें से 50-60% बेचारे उसी फेज वन के चक्कर में बाहर चले जाते हैं, जबकि उनमें वो कैपेबिलिटी होती है कि अगर वो फेज टू चले जाते तो एग्जाम आराम से निकाल लेते, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं निकाल पाए। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स है 9 जो आपके लिए फोकस रहेंगे, 9 टॉपिक्स। सेम फॉर द क्यूए, क्यूए के लिए हम सेम बात करेंगे कि टोटल कुछ 19 टॉपिक्स की बात की जाती है क्यूए के लिए। ये मेन फैकल्टीज ने बताए हुए टॉपिक्स है। इसमें से we'll see these 8 topics will be really very important. ये 8 टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नंबर सीरीज, रेशियो प्रोपोर्शन, एजेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पार्टनरशिप, इस पे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। Same for the English anyways is very easy for students. Almost every student is able to clear the cutoff of English. बहुत आसान पेपर भी आता है, लोगों को तो आउट ऑफ आउट मार्क्स भी इंग्लिश के अंदर मिल जाते हैं। इस बार काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आउट ऑफ आउट मार्क्स इंग्लिश के अंदर मिले, सो इट इज वन ऑफ द इजी। जिनके लिए इंग्लिश वीक है उनके लिए कहूंगा कि ये कुछ टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स के ऊपर आप थोड़ा अच्छे से काम कीजिए और आपके बेसिक ग्रामर के ऊपर आप थोड़ा फोकस कीजिएगा, विल बी हेल्पफुल फॉर यू। देन जनरल अवेयरनेस में दो चीजें होती है, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक। पर स्टैटिक जो भी होता है वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही होता है, तो स्टैटिक में जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो मोस्टली करंट ओरिएंटेड ही होते हैं। तो अगर 80 क्वेश्चन है तो 80 में से 90% इज करंट अफेयर्स, आई विल से 100% इज करंट अफेयर्स। इफ योर करंट अफेयर्स रीडिंग इज वेरी गुड,
यू आर एबल टू क्लियर द, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्टैटिक ऑल्सो। अब करंट अफेयर्स में क्या करना चाहिए, यहाँ पे भी बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। इनका फोकस ये होता है कि जब एग्जाम पास में आएगी तब लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 4 मंथ्स पढ़ के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, आजकल तो बिल्कुल नहीं होता। द वे दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, भले ही क्वेश्चंस बड़े पूछे या छोटे पूछे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं, उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है, बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप मेंस में जाओगे तो इसी जीए को आपको हेल्प मिलेगी टू क्लियर द फेज 2 एग्जाम, बिकॉज इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए है, इसमें जो अलग अलग केस स्टडीज है, अलग अलग स्कीम्स है, यही आप फेज 2 में भी लिख सकते हो एज अ एग्जाम्पल। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखेगा। मैं कहूंगा अभी आपके पास वक्त है तो अभी से प्रॉपरली करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू कीजिए या वीकली बेसिस पे पढ़िए। हमारे भी सेशंस होते हैं 9 बजे, सो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। सो रीड करंट अफेयर्स केयरफुली। करंट अफेयर्स का सीन क्या है, पहले ही दिन आपको कुछ समझ में शायद नहीं आएगा या पहले 1 वीक आपके बाउंसर जाएगा, बट अगर आप लगे रहे, अगर आप पढ़ते रहे, अगर आप फोकस करते रहे, तो धीरे धीरे ये आपका नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड होगा, और नॉलेज अगर बिल्ड होता है तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो करंट अफेयर्स के लिए आपकी डेली स्टडी बहुत जरूरी है। पहले होता था, पहले मंथ में एक बार पढ़ के एग्जाम देते थे, निकल भी जाती थी। आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट एवरी वीक गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स अनाउंसमेंट करती है, आरबीआई की नई पॉलिसीज आती है। दैट्स व्हाई इफ पॉसिबल रीड द करंट अफेयर्स ऑन द डेली बेसिस, विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। इसके भी कुछ मेन मेन टॉपिक्स मैंने डाल के रखे हुए, बट दोज आर द कॉमन टॉपिक्स लाइक इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट योजनाज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो बस ये बताने का ये रीजन था कि अगर आप बैंक एग्जाम का स्पेशली क्यूए और रीजनिंग को जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो आपके लिए बेटर होगा। सिर्फ एक कोई बुक उठा ली क्यूए की और बस वो बुक सॉल्व करके मैं चला जाता हूं एग्जाम में, ये आज के डेट में नहीं होता है। आप में से बहुत लोग यही करते हैं, शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि किसी एक बुक के सारे सवाल सॉल्व कर लिए और उसके भरोसे एग्जाम निकाल ली। ये 10-15 साल पहले अच्छा लगता था। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जहां पे बड़ी फेमस फेमस फैकल्टीज है, बट ये क्यूए और रीजनिंग को बताने में अभी भी गड़बड़ करते हैं, अभी भी सीरियसनेस नहीं है। तो उस चक्करों में क्या होता है, जिन बच्चों को ऑलरेडी आता है ना, वो एग्जाम क्लियर करते हैं, बस उन्हीं के इंटरव्यूज बता देंगे, उन्हीं के ऊपर बातें होगी। पर जो बच्चा कैपेबल था, बट ड्यू टू दिस रॉन्ग गाइडेंस एंड ड्यू टू दिस लेथार्जिक माइंडसेट, वो बेचारा प्री ही नहीं क्लियर कर पाया। उसके बारे में कोई बात नहीं करता कि क्यों, व्हाई व्हाई दिस हैपेंड, जबकि उसमें ज्यादा कैपेसिटी थी एग्जाम सही से क्लियर करने की, बट एक रॉन्ग गाइडेंस उसके लिए बहुत डेंजरस बन गया। तो मैं आपको वही कहूंगा कि इसको ऐसा लाइटली मत लीजिए। कोई कुछ भी कहे, कोई कैसा भी कहे, जिसकी एग्जाम नहीं निकली ना, उसको पूछिए कि यार क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या दिक्कत हुई थी। क्योंकि हम कई बार ना सिर्फ सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, सक्सेस स्टोरी वाले का सीन ऐसा होता है कि शायद उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है, या उसके शायद कुछ सब्जेक्ट के परसेप्शन बड़े स्ट्रांग होते हैं, और फेज 2 के बाद वो केवल फेज 2 और इंटरव्यू के ऊपर ही बात करते हैं। फेज 1 इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी पीपल आर नॉट एबल टू क्लियर दैट। तो जिनका नहीं निकल रहा ना, उनसे भी बात कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनको फेज 2 नहीं आता, उनको आता है, उनको शायद बहुत अच्छे से आता होगा, बट वो फेज 1 में ध्यान नहीं दे पाए। तो बस वही एक गुजारिश होगी कि वहां पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। दैट्स ऑल गाइस। कोई डाउट्स होंगे, कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालिएगा, विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट। दैट्स ऑल। बाय बाय, टेक केयर।